आदि पर्व का है और इसे आप पूरी देखें और स्किप न करें। और अंत में वह रास्ता बताऊंगा, वह चीज बताऊंगा जो आप लोगों ने सुनी नहीं। वीडियो का अंत में देखें। मित्रों, यह महाभारत का जो है 13, 14, 15 भाग। जय श्री राम। मित्रों, कैसे हो? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आप लोग कुशल हैं। और आज मैं दे रहा हूँ महाभारत दोस्तों अगर हिडम्बा की कहानी, क्योंकि हिडम्बा से मुलाकात इस प्रकार से हुई। भीम पांडव में जो भीम था की मुलाकात कैसे हुई उस कहानी को, और इसके पीछे और भी रोचकदार कहानी है महाभारत से जुड़ी हुई है। और साथ साथ में आपके ग्रह गोचर का जो है राशि पर ग्रह गोचर किस प्रकार से इसको भी देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी है। तो आप इसको पूरी देखें, इसमें कोई कट न करें, तब तक जो है आपको महाभारत की कहानी पूरी मिलेगी नहीं, इसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कहानी या चाहे कथा हो तो सुनने से जो है, उसे सुनने से ज्ञान की तो प्राप्त होती है। मन कर्म वचन से अगर कोई कहानी को सुन रहा है और कहानी को देख रहा है इस वीडियो को, तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हो सके कि आप लोगों को The path to true wisdom begin with patience and the willingness to listen, as knowledge is a light that grows when shared with others. मैं आपको बताने जा रहा हूँ भीम हिडम्बा की कहानी को। मैं दोनों भाषा में दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में। टुडे विल एक्सप्लोर द fascinating and The time has come to honor the ancient promise of our ancestors and walk the path toward our shared destiny together. The Pandavas along with their mother Kunti wanders deep into the forest. The forest was dark, mysterious, and filled with unseen terror. In that forest lived a horrible demon named Hidamba, along with his sister Hidamba. When Hidamba sustained the presence of the Anusan, he ordered Hidamba to capture. ಮಾರುಪಟ್ಟೊಂದು ಕದುರು ಪದಿನಿಂತು ವಾಯಿಪೋಚಂಡಿ ಪೋರಿಯನ ಮೆಂದ ಕಣಿಲ ಪನ್ನು ಕಡದಲ್ಲಿ ಗಿರಿ ಪೋಚಂಡಿ ಕರ ಎಂದ ಫೂ ತೆರುಚಂ ಕೊತ್ತಿ ಮನ್ Captained by his courage and noble appearance, she transferred herself into beautiful woman and approached him with love and respect. Hidamba warned Bhim about her brother's evil intentions and requested him to dispraise mentally. What Bhim realized and transcend they run away. Soon Hidamba around and great anger of furious battle began between Bhim My and heart Hidamba. has found its anchor in your strength, and in this sacred light, I offer you. With image power. In the end, Bhim defeated and killed Hidamba then expressed her sincere love for Bhim before Kunti and the Pandavas. Kunti, understanding Hidamba's fiery heart, gave her permission to marry Bhim. Bhim and Hidamba were married according to sacred distance in the trust. Their union symbolized love, oneness, authority of space, strength, and firm. In time, Hidamba gave Praise birth my child, to for your devotion to him and our family is Ghatotkacha. accepted with all my heart. Heritage the spirit of him and the magical powers of his mother. After some time, Bhim and to continue his आंबडरी पथ्य बरे वातो पोचेतिंगा इतर लांग कपले थोड़ी अंजामिते दी झालो को दीसो थड़ केन्न किटो मट्टी कन्नर कन्ना पाती मडिये पातर वडिया केन्न केन मनकन्ना मट्टी अंगी किंकी की The story of Bhim and Hidamba they to love when affection
and social boundaries. It is a timeless tale of courage, compassion, service and unconditional love. महाभारत भीम और हिडम्बा का विवाह कथा जानिए। वीडियो पर बराबर बने रहें। तो जब लक्षागृह से भयंकर अग्नि से बचकर निकलने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ घने और भयावह वन में జగత్తుల ముంగాండున ఇంద్రియులను మొత్తి వంధ్యతోడుతున్నాను అప్పమే ఊరించచ్చుందా వడి తోడిగా ఇంద్రతో ఎన్నిక रहे थे। रात्रि का समय था, चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। जंगल में हिंसक पशुओं की आवाज गूंज रही थी। माता कुंती और अन्य पांडव विश्राम करने लगे, लेकिन भीम उनकी रक्षा के लिए जागते रहे। हिडम्बा राक्षस की योजना उसी वन में हिडम नाम का एक भयानक राक्षस अपनी It have always been our home, Hidimba, but we must remain vigilant in these woods. सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र थी। उसने मनुष्य की गंध पाई और उसकी भूख जाग उठी। उसने अपनी बहन हिडम्बा से कहा, जाओ उन मनुष्यों को पकड़ कर लाओ, आज हमारा भोजन वही होंगे। हिडम्बा अपनी भाई की आज्ञा मानकर पांडवों के पास पहुंची। जब हिडम्बा ने भीम को देखा, come to choose the path of righteousness. We shall follow your guidance in this great duty, Lord Krishna. शरीर और तेजस्वी चेहरा और अद्भुत पराक्रम देखकर उसके हृदय में प्रेम जाग उठा। वह अपने राक्षसी रूप को त्याग कर एक अत्यंत सुंदरी स्त्री का रूप धारण कर भीम के सामने आई। उसने भीम से कहा, मैं हिडम्बा हूँ, मेरा भाई हिडम तुम्हें मारकर खाना चाहता है, कृपया यहाँ से चले जाएं। मैं आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दूंगी। भीम और हिडम का युद्ध तो इसमें जो है अपनी प्यारी मीठी चुटकी अच्छी बात कहकर जो है भीम के मन में प्यार जाग उठा। दोनों के मन में प्यार जाग उठा। फिर भीम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यदि तुम्हारा भाई आएगा तो मैं उसका सामना करूंगा। कुछ ही क्षण बाद ही हिडम वहां आ पहुंचा। उसने अपनी बहन को भीम से बात करते देखा तो वह क्रोध से भर उठा। भीम और हिडम के बीच में इतना भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। धरती कांप उठी, वृक्ष हिलने लगे और युद्ध की गर्जना पूरी वन में गूंजने लगी। अंत में भीम ने अपनी अपार शक्ति से हिडम का वध कर दिया। विवाह का प्रस्ताव हिडम के वध के बाद हिडम्बा ने माता कुंती और युधिष्ठिर से विनम्र निवेदन किया। उसने कहा, मैं भीम से प्रेम करती हूँ, कृपया मुझे इनके साथ विवाह करने की अनुमति दें। माता कुंती और युधिष्ठिर ने उसकी सच्चाई, समर्पण और प्रेम देखकर अनुमति दे दी। इस प्रकार भीम और हिडम्बा का विवाह संपन्न हुआ और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में उनका जो बालक था, बालक घटोत्कच का जन्म हो गया। कुछ समय बाद हिडम्बा के तेजस्वी पुत्र का जन्म जब उसका नाम रखा गया तो घटोत्कच वह अत्यंत बलशाली, मायावी और वीर योद्धा था। उसने आगे चलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषकर कर्ण की दिव्य शक्ति को निष्फल करने की घटोत्कच का योगदान अमूल्य था। भीम का प्रस्थान घटोत्कच के जन्म के बाद भीम को अपने भाइयों और माता के साथ आगे चलकर यात्रा पर निकला था। हिडम्बा ने धर्म और कर्तव्य को समझते हुए भीम को जाने
की अनुमति दी। भीम ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और हिडम्बा से विदा ली। हिडम्बा ने अपने पुत्र का पालन पोषण अकेली किया और उसे महान योद्धा बना दिया। कथा का संदेश है कि भीम और हिडम्बा की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम किसी सीमा, जाति या रूप का बंधन नहीं माना जाता है। सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और सम्मान पर आधारित होता है। यह कथा वीरता, कर्तव्य, मातृत्व और बलिदान का अनूठा उदाहरण है। महाभारत की यह अद्भुत कहानी आज भी हमें प्रेम, धर्म और साहस का मार्ग दिखाती है। Who will listen to one of the most fascinating is emotional and heroic story the Mahabharata, the story of Bhim and Hidamba's marriage. This is not just a tale of love, but also an inspiring song of courage, righteousness, sacrifice and destiny. महाभारत और हिडम्बा का विवाह की यह कथा सुन रही हैं तो नीचे पूरी कहानी मैं आपको और दूंगा, आप बने रहें। और अगला पार्ट में दे रहा हूँ जो कि भाग 13 और 14 का। तो इसके पश्चात यहाँ पर यह कहानी के साथ साथ में महाभारत की एक और भी कहानी वैसे मैंने पहले भी बनाई थी यह वीडियो, और अब भी इसी के साथ बन रही है। आप बने रहें तो आगे क्या होता है, जो सर्पों की उत्पत्ति कैसे हुई, नाग की उत्पत्ति कैसे हुई, नाग की उत्पत्ति के लिए आप देख रहे हैं। और महाभारत का जो है 15 और 16, 14, 13 और 14 पर भाग जानिए। महाभारत का आदि पर्व का 15-16 भाग जो है आस्तिक और नाग यज्ञ की शुरुआत। अब कथा उस समय पर पहुंचती है जब राजा जनमेजय अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित थे। Now the story reaches the time when King Janmejaya was angry over his father's death. उनके पिता परीक्षित के कारण हुई थी। His father परीक्षित died इसलिए जनमेजय ने भी सभी नागों से बदला लेने का निश्चय किया। सो जनमेजय डिसाइड टू टेक रिवेंज फ्रॉम ऑल सर्पेंट्स। उन्होंने एक भया और भयानक नाग यज्ञ का आयोजन किया। He organized a great and terrifying snake sacrifice। इस यज्ञ में मंत्रों की शक्ति से नाग को खींचकर अग्नि में डाला जा रहा था। With the power of mantras, serpents were being pulled into the fire। एक एक करके हजारों नाग अग्नि में गिरने लग गए। One by one, thousands of serpents started falling into the fire। पूरा नाग वंश भया और संकट में आ गया। The entire serpents race came in fear and danger। तक्षक नाग जो इस घटना का कारण था वह भी डर गया। तक्षक द serpent responsible also became afraid। वह इंद्र देव के पास जाकर शरण लेने लग गया। He went to इंद्रदेव and sought shelter। लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इंद्र भी उसे बचा नहीं पा रहे थे। What the power of the yajna was so when Indra could not save him। इसी समय
आस्तिक मुनि बड़े हो चुके थे। एट द सेम टाइम आस्तिक हैंड ग्राउंड ऑफ, उन्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान था, नाग की रक्षा करना। He knew सर्प he knew his purpose, status वे रोकेंगे टू दिस की ओर बढ़े, टूवर्ड्स द यज्ञ प्लेस। तब एक सच्चा ज्ञानी ही उसे बचा सकता है। When धर्म इज इन एजर बाय पर्सन कैन सेव इट। फिर मैं आगे और कहानी आपको सुनाऊंगा। अब कथा उस समय पर पहुंचती है जब राजा जनमेजय अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित थे। नाउ द स्टोरी रीचेस द टाइम व्हेन किंग जनमेजय वाज एग्री ओवर हिज फादर्स डेथ। इस क्रोध को व्यक्त करता हुआ, क्रोधो ही शत्रु सर्वेषां देहिनां देहिनाशनः। क्रोध सभी का सबसे बड़ा शत्रु है जो अंततः विनाश करता है। Fear is the greatest enemy of all, it leads to destruction। तो इसी प्रकार से जो है उधर जब हिडम्बा से जब बच्चा घटोत्कच की उत्पत्ति हुई तो हेम ने जो है अपनी माता और भाइयों सहित जो है आगे की यात्रा की। तो घटोत्कच बड़ा हो गया तो घटोत्कच अपने पिता को उनके मिलने के लिए बहुत बड़ा उत्सुक था, जिससे जो है उन्हें बहुत बड़ी लालसा थी। तो क्या कहता है, क्या सोचता है, दर्शन आलस्यम हृदय में प्रवर्तते है। मेरे हृदय में पिता को देखने की तीव्र इच्छा हो रही है। देखिए कितनी बड़ी गजब की बात है कि उधर जो है जनमेजय अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बहुत बड़ा क्रोधित है। इधर जो है घटोत्कच जो है अपने पिता के दर्शन के लिए बहुत बड़ी लालसा उनके हृदय में उत्पन्न हुई। तो आई हैव अ डीप डिजायर टू सी माय फादर। जब घटोत्कच भीम के सामने आता है, कहानी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है और यहाँ इससे जो है आप बिल्कुल स्किप न करें, कट न करें, और तभी आपके समझ में आता है कि पिता और पुत्र का किस प्रकार क्या नाता होता है और क्या है ये। अब देखिए, अहम पुत्रस्तवीरः नमामि त्वं पितामह। हे वीर, पिता मैं आपका पुत्र हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और रेवा फादर, आई एम योर सन, आई वो डाउन टू यू। भीम उसे गले लगा देता है। नेहम बद्धम हृदय पुत्रे दृष्टि प्रसिद्धति। पुत्र को देख कर हृदय में स्नेह भर जाता है भीम का। When a father sees his son, his heart fills with love। कितनी बड़ी रोचक बात है ये। अब भीम जो है हिडम्बा के सामने आता है और हिडम्बा और भीम का जब आपस में पुनर्मिलन होता है, कहानी बहुत बड़ी गजब की है। इसको फिर मैं आगे और बताऊंगा घुमा फिरा के कि कहाँ से दीर्घ विरह हंसयुक्तम मिलनम हृदय स्पर्शी, अर्थात लंबे विरह के बाद मिलना हृदय को छू लेने वाला होता है। और ये यूनियन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम
एज द हार्ट वयासु पोषितो वीरा मम पुत्र महाबला। मैंने मेरे पुत्र का बहुत वीर और शक्तिशाली बनाया है। भीम कहते हैं हिडम्बा से, यू हैव रेज्ड माय सन वेरी ब्रेव एंड स्ट्रांग। हिडम्बा उत्तर देती है, पितृवंश प्रभावेण स एव महाबला। यह आपके ही वंश का प्रभाव है, इसलिए यह बलवान है। देखो कितनी बड़ी अच्छी बात